Good morning, children. Welcome to your EVS class. I am Asthana ma'am. Today I am going to teach you lesson number 8. Children, the name of this chapter is Different Types of Food. I hope you are ready for your class and you open page number 46, lesson number 8. Are you ready with your books? Okay. Now, in this chapter, today I am going to tell you about the importance of food and what are the different types of food and where do we find these foods, the types of foods. So, now you tell me that we eat every day. आप लोग खाना खाते हो ना? हम भी खाते हैं, सब लोग खाना खाते हैं. But do you know why do we eat food? हम लोग खाना क्यों खाते हैं? What is the need of eating food? Because food gives us energy, it helps us to grow and it keeps us healthy. ये बातें आप लोग को मैं पहले भी पढ़ा चुकी हूँ. Alright children? So what is the reason of eating food? 3 reasons. It helps us to grow, it keeps us healthy, it gives us energy to work and play. 3 reasons. Now, I have written this. See, it gives us energy, it helps us to grow and it helps us to be healthy. Now, how will we decide what to eat and what not to eat? Today I will tell you what to eat and why to eat. Now see, there are different types of food which has got 3 categories. The number 1 is energy giving food. Second one is body building food. And the third one is protective food. The first one, energy giving food, gives us energy to work and play. Now in this energy giving food, there are different types of food which gives us energy. And those foods are cereals. अब cereals क्या होता है? अनाज कहते हैं उसको हिंदी में. And they are rice, wheat. मैंने 2 ही एग्जाम्पल लिखे हैं. अनाज बहुत तरह के होते हैं. Alright children? Oils, जितने तरह के ऑयल होते हैं, चाहे मस्टर्ड ऑयल हो, कोकोनट ऑयल हो, तिल का तेल हो, हाँ बहुत नारियल का तेल, तो ये सब हमको एनर्जी देते हैं. बटर, घी, इसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं. If you see your books, there are few more names, but here I have given you few examples. Then comes body building. अब बॉडी बिल्डिंग में क्या होता है? हमारे जो शरीर है, हम लोग जब न्यू बेबी होते हैं तो छोटे से होते हैं. ऑलराइट. एंड द न्यू बेबी ग्रोज, धीरे धीरे बढ़ता है. अब क्या ये जो ग्रोथ होती है, बॉडी जो बनती है, हमारी स्किन बनती है, बोन्स बनती हैं, सारे बॉडी पार्ट्स बनते हैं, सेल्स ऑर्गन बनते हैं, इन सबको बनाने में हेल्प करता है बॉडी बिल्डिंग. ज़्यादातर प्रोटीन होता है इसमें. ये बॉडी बिल्डिंग फूड्स होते हैं, ये हमको किसी किसी तरह के खाने से मिलते हैं. वी गेट दीज बॉडी बिल्डिंग फूड फ्रॉम फ्यू आइटम्स ऑफ फूड. दैट आई विल टेल यू हियर. मिल्क, meat, egg, soya bean. Now, fish is also there. So, those who are vegetarian, they can have lots of milk and soya bean. Alright children. And from milk we get so many products. We get curd, we get paneer. So, if you have milk and milk products, the vegetarians, they can have this. And soya bean. Even soya bean is also very good. You get it in chunks, you get it in powder also. सोया बीन का आटा आता है, वो भी यूज़ करा जा सकता है. चंक्स आते हैं, उसकी सब्जियां बनती हैं. ऑल राइट. एंड दोज हु आर नॉन वेजिटेरियंस, दे ईट मीट एंड फिश. और बहुत से लोग होते हैं जो केवल एग खाते हैं. दे आर कॉल्ड एगिटेरियंस. सो ये जो जितनी चीज़ें होती हैं, लाइक मिल्क,
soya bean. We can add fish here. They are all bodybuilding food and they help us to grow. हमारी बॉडी को ग्रो करने में मदद करते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाने में भी मदद करते हैं. When we are weak, we have this kind of food and we become strong. Then the third kind of food is protective food. ये जो protective food होते हैं, they protect us from diseases. ये ऐसे खाने होते हैं जिनको खाने से हमारी बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ती है और हम लोग जो है डिजीज़ेस से बच के रहते हैं. इज दैट क्लियर? सो देयर आर मैनी डिजीजेस. अगर आप कोई खाना ना खाएं, किसी तरह का प्रोटेक्टिव फूड ना खाएं, तो वो बीमारी हो जाती है. कोई बीमारी आँख की होती है, कोई स्किन की होती है. इसी तरह से ये जो प्रोटेक्टिव फूड होते हैं, इनको ना खाने से हम लोग को बहुत सारी बीमारियाँ हो जाती हैं. अब ये प्रोटेक्टिव फूड हमें कहाँ से मिलता है? प्रोटेक्टिव फूड हमें मेनली two things are there to get protective food: fruits and vegetables. अब वेजिटेबल्स भी दो तरह के होते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स या नॉन लीफी वेजिटेबल्स. मतलब जिसमें लीफ ना हो ऐसे वेजिटेबल्स, और एक होता है जैसे लीफ हो. तो लीफ किस में होती है? पालक खाते हो ना, मेथी, है ना. तो ये जो इनको कहा जाता है पालक, मेथी, पुदीना, धनिया, और ठंड के दिनों में तो बहुत सारे साग आते हैं. ये सब लीफी वेजिटेबल्स कहलाते हैं. और जो नॉन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं जैसे पोटैटो है, अनियन है, कैप्सिकम है, देन कैरेट है, ऑल दीज थिंग्स आर नॉन लीफी वेजिटेबल्स. ये सारे वेजिटेबल्स जो होते हैं ये हमारे लिए प्रोटेक्टिव फूड की तरह से काम करते हैं. इसके अलावा फ्रूट्स, तो फ्रेश फ्रूट्स खाना बहुत ही हेल्दी होता है और ये हमारे बॉडी का इम्यूनिटी को बढ़ाता है. अब फ्रूट्स तो यू ऑल नो, सो मेनी फ्रूट्स यू ईट: एप्पल, बनाना, गुआवा, पाइनएप्पल. हाँ, देर आर सो मेनी, एंडलेस. सो यू ऑल, अभी आपने ये चैप्टर जो मैंने आज पढ़ाया, इससे आपको क्या समझ में आया? सबसे पहले, वाई डू वी ईट फूड? कारण क्या है फूड खाने का? तो देर आर 3 रीजन्स. द फर्स्ट रीज़न, इट गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले. सेकेंड रीज़न, इट बिल्ड्स आवर बॉडी, हेल्प्स अस टू ग्रो. थर्ड रीज़न, इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम डिजीजेज, इट मेक्स अस हेल्दी. ये तीनों पॉइंट्स हैं. फिर वेयर डू वी गेट दिस फूड फ्रॉम? ये तीनों चीज़ों के लिए हमको खाना कहाँ से मिलता है? So there are 3 types of food which we get. Number one is energy giving food. This we get from cereals, oils, butter, ghee, etc. The second one is body building food, and this body building food we get from milk, meat, fish, egg, soya bean. Third one is protective food. ये हमें हेल्दी बनाते हैं, हमें बीमारी से बचाते हैं. Where do we get this food from? We get this food from green leafy vegetables and fresh fruits. Now in this chapter we will know something more important with the food, and that is water. Every day we should drink plenty of water every day, which is required by our body. If the water plays an important role in our body, so we should drink a lot of water. How much? At least 8 to 10 glasses of water. Now this plain water we drink in glass, but we get water from other food also, and that is fruits and vegetables. You must have seen children from when you cut some fruits, the water comes out, like watermelon. When you cut watermelon, the water comes out of it. When you eat oranges, water comes out of it. Grapes. So there are so many fruits which have water. Maximum fruits have water in it. So the required amount of water is 8 to 10 glasses of water. Apart from that, we should
take lots of vegetables and fruits so that this water is balanced in our body. Now children, you must be having that query in your mind that where do we get this food from? And the answer is very easy. Market. You or your parents at times go to market. From there you get all the vegetables, fruits and everything. Am I right or wrong? Right. Now, children, see how do food reaches us. खाना हम लोग तक कैसे आता है? We go to the shop and buy it. मार्केट जाके खरीद के ले आते हैं. But in this shop, where do the food items come from? Shop पे कहाँ से आते हैं food items? These shopkeepers go to bigger shopkeepers or wholesalers. अब bigger shopkeeper और wholesaler का क्या मतलब है? When we go to shop, we tell them to give things 1 kg, half kg or 250 grams or some little amount of food and they give us. But these shopkeepers, they go to bigger shopkeepers or wholesalers. अब ये wholesalers और bigger shopkeepers कौन होते हैं? They supply food in very big amount, 10 kgs, 100 kgs like that. और ये shopkeepers, bigger shopkeepers या wholesalers के पास से खरीद के लाते हैं. जो ये bigger shopper और wholesalers होते हैं ना, ये थोड़ा सामान नहीं देते. If you go to bigger shopkeeper, कि मैं शॉप से नहीं लूँगा, मैं जाके वहीं से ले लेता हूँ. They will not give you little amount. हाँ, आपके घर में शादी है, कोई फंक्शन है, बड़ा ज़्यादा सामान चाहिए, then you can go to the bigger shopkeeper and you can buy things from there. So we get the things from shop and the shopkeepers go to bigger shopkeepers or the wholesalers. Wholesalers ज़्यादा सामान एक साथ देते हैं, थोड़ा वो लोग कभी नहीं देते. Now where do the wholesalers get the food from? Wholesalers के पास ये ज़्यादा सामान कहाँ से आता है? They get it from the farmers. खेतों में जो काम करते हैं ना, farms, किसान जो होते हैं, वो लोग ये फूड को उगाते हैं. They grow the food, all types of food. चाहे आप फ्रूट्स बोलिए, चाहे आप वेजिटेबल्स बोलिए, चाहे आप सीरियल्स बोलिए, दाल है, चावल है, गेहूँ का आटा है, या राजमा, छोला, anything, whatever you eat in your home, everything these farmers grow. All right, children. So now, today you have come to know that why do we need food? What are the variety of food? और जो variety of food है वो हमें कहाँ, जो उनके sources क्या हैं? Is that clear? जैसे कि energy giving food है, वो हमको wheat, rice, oil से मिलता है. जैसे कि बॉडी बिल्डिंग फूड है, वो हमको मिल्क, फिश, मीट से मिलता है. जैसे कि प्रोटेक्टिव फूड है, वो हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से मिलता है. इसके अलावा वी शुड ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर विच इज़ ऑल्सो वेरी नेसेसरी फॉर अस. देन फॉर वाटर आई एम सेइंग एवरी डे इन द स्कूल ऑल्सो यू कैरी अ बॉटल ऑफ वाटर. दैट इज़ वाई. और इफ़ यू डोंट हैव, यू रन फ्रॉम द क्लास. मैम पानी पीना है, may I drink water. So water is very important for all of us. Then in this chapter we have come to know where do the food comes from. Food कहाँ से आता है? हम लोग शॉपकीपर से लेते हैं, शॉपकीपर होलसेलर से लेता है, होलसेलर फार्मर्स से लेता है. Is that clear? Now children, you open your page 48. In 48 you can see the photo of a farmer, a wholesaler and a shopkeeper. Apart from this, there are few points which you have to remember to be healthy. This I am reading from here and explaining it to you. Are you ready with your books? Page number 48 you open. I will read it for you and explain you. The first point is, eat clean and fresh food. सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि हम लोगों को हमेशा साफ और अच्छा खाना खाना चाहिए. स्टेल फूड मैंने बताया था ना, नहीं खाना चाहिए, कभी नहीं खाना चाहिए. खराब खाना, बहुत दिन तक रखा हुआ खाना भी नहीं खाना चाहिए. तो फ्रेश फूड हम लोग को फूड खाना चाहिए, ताज़ा बना खाना खाना चाहिए, जो कि हमारी हेल्थ के लिए अच्छा हो. सेकेंड पॉइंट, वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग. खाना खाने से पहले और खाना खाने से बाद में दोनों बार आपको अच्छे से हाथ
धोना चाहिए, नाखून बड़े नहीं होना चाहिए, नाखून हमेशा काट के रखना चाहिए, नहीं तो नाखून के अंदर गंदगी आ जाती है. सो यू शुड वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली, कट योर नेल्स प्रॉपरली, एंड बिफोर एंड आफ्टर वॉश योर हैंड्स. Do not eat food from a roadside stall or eat food exposed to dust and flies. ये हम लोग आप लोगों को बीच बीच में बताते रहते हैं, आपके पेरेंट्स भी बोलते रहते हैं, पर आप लोग बहुत जिद करते हो, नहीं नहीं नहीं. ये जो खुले सड़क पर स्टॉल्स लगे रहते हैं ना, चाट के, चाउमीन के, डोसा के, दीज आर वेरी हार्मफुल. रोड साइड में पूरी धूल चलती रहती है, डस्ट चलती रहती है, और सब फूड में मिक्स हो जाता है. So you should never eat the food from roadside which is exposed to dust and flies. मक्खी बैठती है, मक्खी के पैरों में गंदगी होती है, और वो गंदगी वो खाने पर डालती है, वही खाना हमारे पेट में जाके इट कॉजेज लॉट्स ऑफ डिजीजेज. मैंने पढ़ाया था ना, डिसेंट्री, कॉलेरा, जॉन्डिस इसी से हो जाता है जब हम खुले जगह का गंदा खाना खा लेते हैं. देन द नेक्स्ट पॉइंट इज कीप द फूड कवर्ड. At your home also or in school also when you bring tiffin, you must have seen टिफ़िन आपका पैक्ड होके आता है, कवर्ड होके आता है. तो घर में मम्मी खाना बनाती है, टेबल पे रखती है, शी कवर्स इट, isn't it? Even in the kitchen when she cooks, she covers everything. Why? Because she saves it from the dust and dirt. Sometimes there are small insects also in the kitchen. चींटी वीटी आ जाती है ना, so the food should be always covered, otherwise it becomes contaminated. Next point, do not eat food from chew your food well. आप जब खाना खाते हैं तब आपको अपना खाना बहुत अच्छे से चबा चबा के खाना चाहिए. जल्दी जल्दी बड़ा बड़ा बाइट लेकर मुंह में भर के. So many times I have told in the school also, when I sit with the children, I tell them, what is the hurry? Who is snatching your food? Eat small bites, eat slowly and chew it many times. If you chew your food many times, it is digested well. आपके पेट में जाके वो खाना अच्छे से पच जाता है. इसलिए आपको खूब अच्छे से चबा चबा के खाना चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट, नेवर वेस्ट फूड, ऑलवेज टेक द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फूड. दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई हैव सीन मेनी चिल्ड्रन वेस्टिंग देयर फूड. मम्मी इतनी मेहनत से बना के देती है, दे पुट इट इन द डस्टबिन. दैट इज सो रॉन्ग चिल्ड्रन. नेक्स्ट पॉइंट, यू शुड नेवर वेस्ट फूड. और आपको जितना खाना है उतना ही आपको लेना चाहिए. इज दैट क्लियर? उससे ज़्यादा आपको नहीं खाना चाहिए. ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर. ये अभी भी मैंने आपको समझाया कि बहुत सारा पानी हर वक्त पीना चाहिए, पर ये नहीं है कि खाने के पहले खूब सारा पी लिया, खाने के बाद भी खूब सारा पी लिया. यू शुड नॉट डू दैट. खाना खाने से आधा घंटा पहले पानी पीना है और खाना खाने के बाद आधा घंटा पानी. इज दैट क्लियर चिल्ड्रन? ओके. वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स थरीली बिफोर ईटिंग दैम. जो भी खाना आप खाते हो, जैसे फ्रूट्स अक्सर हम लोग खाते हैं, तो उसको अच्छे से धो लेना चाहिए, और सब्ज़ी बनाने के पहले सब्ज़ी को भी धो लेना चाहिए. डू नॉट लाफ और टॉक व्हाइल ईटिंग. खाना खाते समय कभी भी बात नहीं करना चाहिए और हंसना नहीं चाहिए. आपके यहाँ पर ये जो पाइप होते हैं, दो पाइप होते हैं, एक फूड पाइप होता है और एक लंग्स में जाने का एयर पाइप होता है. तो जो फूड पाइप होता है, अगर आप जोर से हंसोगे या बोलोगे, वो फूड पाइप एयर पाइप में चला जाएगा, आपका गला चोक हो जाएगा, और हो सकता है आपको बहुत ज़ोरों से खांसी आए, और कभी कभी इससे लोगों की डेथ भी हो जाती है. सो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाइल ईटिंग यू शुड नेवर टॉक और यू शुड नेवर लाफ. ऑलराइट चिल्ड्रन, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, एंड in the next class I will explain you the question answer. I hope you all must have understood properly. If you have any problem, you can note it down and you can